Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamedh Vidyalay, Killa, Padi. Friends, today we are discuss about Standard 7 Subjects Science, Chapter number 15, Light. Friends, in this unit we are discuss about light and path of light. Light travels along a straight line. Then we discuss about reflection of light and also learn about reflection of light from a mirror. In the last lecture, we had discussed about playing with spherical mirror. Before this, we learn about right or left. So today we are moved to the next topic. Take a concave mirror, hold it facing the sun. Try to get the light reflected by the mirror on a sheet of paper. Adjust the distance of the paper until you get a sharp bright light spot on it. So friends, look at here. हमें क्या करना है? कॉन्केव मिरर लेना है एंड देन उसे सनलाइट में रखना है. ओके, एंड उसकी लाइट इफेक्ट पेपर सीट पे पड़े उस तरह से आपको उसे सेट करना है. होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडली फॉर अ फ्यू मिनट्स. डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग? सो फ्रेंड्स, हम अगर इसी तरह से थोड़े टाइम तक उसे पकड़ के रखेंगे तो आप नोटिस करोगे कि पेपर क्या होने लगता है? बर्न होने लगता है, जलने लगता है. द ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट the image of the sun. Notice that this image is formed on a screen. An image formed on a screen is called a real image. So, इसी तरह से जो स्पॉट पड़ता है पेपर शीट पे तो वो स्पॉट क्या है? इमेज है सन का. ओके, तो इस तरह से जो इमेज फॉर्म होता है उसे बोलते हैं रियल इमेज. Recollect that in activity 15.2, the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen such as an image is called virtual image. So, activity 14.2 सॉरी 15.2 जिसमें हमने कैंडल का इमेज देखा था, तो वो कैंडल का इमेज जो है वो कैसा है? वर्चुअल इमेज. बिकॉज उस इमेज से स्क्रीन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज. एंड ये जो एक्टिविटी हमने की, एक्टिविटी 15.6, जिसमें हमने कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ अ सन, तो इस इमेज को क्या बोलेंगे? द रियल इमेज. नाउ एक्टिविटी 15.7, फिक्स अ कॉन्केव मिरर ऑन अ स्टैंड. Any arrangement to keep the mirror steadily would do, and place it on a table. Paste a piece of white paper on a cupboard sheet, say about 15 cm into 10 cm. So हमें क्या करना है? एक कनकेव मिरर को एडजस्ट करना है, बीच में एक कैंडल रखनी है, कबर्ड पे क्या लगाना है? व्हाइट पेपर शीट. ओके, 15 cm into 10 cm की. This will act as a screen. Keep a lighted candle on the table at a distance of about 50 cm from the mirror. Try to obtain the image of the flame on the screen. For this, move the screen till a sharp image of the flame is obtained. Make sure that the screen does not obstruct the light from the candle falling on the mirror. Is this image real or virtual? Is it of the same size as the flame? So friends, हमें क्या करना है? Look at here. एक टेबल पे कनकेव मिरर फिक्स करना है एंड उस तरह से फिक्स करना है कि कबर्ड पे एक सीट लगाना है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की, एंड कॉन्केव मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर क्या करना है? कैंडल रखनी है. कैंडल का इमेज इस सीट पर कैसा होता है वो हमें ऑब्जर्व करना है. वो इमेज
वर्चुअल है या फिर एक्चुअल है, रियल है, वो हमें नोटिस करना है। नाउ मूव टू द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। In each case, try to obtain the image of the screen. Record your observation in table number 15.1. Is it possible to obtain the image on the screen when the candle is too close to the mirror? So friends, अगर कैंडल बहुत ही नज़दीक हो मिरर के तो वो इमेज पॉसिबल है या नहीं है, वो हमें ऑब्जर्वेशन टेबल नंबर 15.1 में लिखना है। We see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object. The image may also be real or virtual. So friends, हमें ये ऑब्जर्वेशन टेबल नंबर 15.1 में लिखना है कि ये जो इमेज फॉर्म हुआ है कैंडल को मिरर के पास रखने से, तो वो इमेज रियल है या वर्चुअल है, एंड उसकी साइज जो ऑब्जेक्ट है उससे स्मॉल है या फिर लार्ज है, वो हमें लिखना है। कंकेव मिरर आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पस। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कंकेव मिरर्स फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। Concave mirrors are also used by dentists to see enlarged image of the teeth. The reflection of torches, headlights of cars and scooters are concave in shape. So friends, look at here. ये टॉर्च है, तो टॉर्च की अंदर की जो सरफेस है वो कैसी होती है, कनकेव सरफेस होती है। ओके, एंड कार, स्कूटर, बाइक्स, मोपेड, ये सारे व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती है वो भी कैसी होती है, कॉनकेव साइज। ओके, एंड डेंटिस्ट जो यूज करते हैं ग्लास का नियर से पेशेंट का एग्जामिनेशन करने के लिए, टीथ को नियर से ऑब्जर्व करने के लिए, उसकी साइज बड़ी करने के लिए, तो वो क्या यूज होता है, कनकेव सरफेस, कनकेव मिरर। सो कनकेव मिरर से क्या होगा, जो रियल इमेज है उससे ज्यादा बड़ी इमेज दिखेगी। ओके, Buzo observed his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. He wondered if the bell is also kind of spherical mirror. Can you recognize the type of the mirror? Not that the reflecting surface of the bell is convex. So friends, बुजो बाइसिकल लेके जा रहा था एंड उसने अपना इमेज बेल के साइनी सरफेस पे देखा, तो बाइसिकल की बेल की जो साइनी सरफेस है वो, उसमें जो इमेज देखा बुजो ने, तो वो उसकी साइज से स्मॉलर साइज का था। सो ही वंडर्ड द बेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर। कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर? सो फ्रेंड्स, बेल, बाइसिकल का जो बेल होता है उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल मिरर जैसा, बट उसकी जो शाइनिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कनकेव नहीं है, वो कैसी है, कन्वेक्स टाइप की। इसी वजह से उसको इमेज कैसा देखा, यस, स्मॉलर साइज का। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक, कनकेव सरफेस। कनकेव सरफेस में इमेज कैसा दिखता है, यस, रियल एंड बिगर देन, यस, बिगर देन रियल इमेज। ओके, एंड कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा दिखता है एंड किस तरह से वो इमेज होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।